Hello students, how are you all? I hope you all are fine, or also you are studying whatever the teachers are sending in the group. So in the previous video we have studied the Himalayan mountains, and in that video I have explained you about the Himalayan mountains, and also I said you that in the next video we'll study about the Himalayan ranges. So as I told you, there are the three ranges in our Himalayan mountain. The very first range is that is Himadri, and the second is Himachal, and the last that is Shivalik. So one by one all the ranges that today in this video we are going to study. Okay, so the very first range is that is Himadri, or is also known as Great or Inner Himalayas. So the very first thing I'll explain you why it is known as Great or Inner Himalayas, right? So in your book you can see this picture. This picture is very important because you are going to understand all the ranges with the help of this picture only. Fine. So the very first thing that you can see in your book and in my notes that I have written, that Himadri. Himadri matlab it is a Hindi meaning. Fine. Hima means baraf, adri means ऊंचा. तो ये एक हिंदी मीनिंग है. So next is Inner Himalayas. अब Inner Himalayas, अब if you are standing here, so you'll say that ma'am, this is the inner Himalayan range according to you, but the fact is the inner Himalayan range is this one. जो हमारी इनर हिमालय रेंज है वो ये वाली. अब तुम बोलोगे कैसे मैम? सो दैट आई एक्सप्लेन यू. फाइन. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जब ये फॉर्मेशन हो रहा था, सो टू प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर. और कौन कौन सी प्लेट थी वो? एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड दूसरी थी यूरेशियन प्लेट. सो व्हेन बोथ द प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर दे फॉर्म द वेरी फर्स्ट रेंज दैट इज हिमाद्री रेंज. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई इट इज नोन एज inner Himalayas range. Fine. So the next is why it is known as Great. So obviously बात है, Great का मतलब बड़ा. So the mountain range in this हिमालयन रेंज. फाइन. जो माउंटेन की जो पीक्स की रेंज है इसमें, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स और ग्रुप ऑफ पीक्स ऑफ माउंटेन जो भी है इस रेंज में, वो क्या है? बहुत बड़ी है. ऑल आर दी लॉफ्टीएस्ट माउंटेन इन दिस रेंज लाई ऑन दिस रेंज. दैट्स वाई इट इज नोन एज ऑल्सो द ग्रेट रेंज. फाइन. सो द नेक्स्ट इज northern most range. It is very important. So this Himadri range lies in the north part. Fine. So this is also known as the northern range. Next is most continuous range consisting of the loftiest peak, 6,000 meter average height. Now as I told you that all the mountains, all the loftiest peaks mountain lies in this रेंज है ना. मैंने बोला ना आपको कि जितने भी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, जो पीक्स है जिनकी बहुत ऊंची ऊंची, वो सारे इसी रेंज में लाई करते हैं. और उनकी एवरेज हाइट कितनी है? 6,000 मीटर. अब जब उनकी एवरेज हाइट 6,000 मीटर है तो उनकी विड्थ भी कई होगी. इट कैन बी इन द 100 किलोमीटर्स, है ना. सो this range carries the loftiest peaks mountain in it, and which carries the height of 6,000 meter. Now the fold of Great Himalayas are asymmetrical in nature. Now in the 7th class you might have read, in 7th or 6th class, symmetrical and asymmetrical. So what is symmetrical? For example, this is a triangle. If I'll say you make it in a symmetry, so you'll cut in from the bottom and you'll cut it and it forms in this manner. तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल मैनर में क्या हो जाता है? मतलब डिवाइड होता है. जैसे हम है, इफ विल कट फ्रॉम द बॉटम, अगर हमें बीच में से काटेंगे तो हम इक्वल पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे. बट माउंटेन्स आर अपोजिट. माउंटेन्स आर असिमेट्रिकल. वाई माउंटेन्स आर असिमेट्रिकल? फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज़ अ माउंटेन, फाइन, सॉरी इट्स नॉट, इफ इट इज़ अ माउंटेन फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, और फिर कट फ्रॉम द बॉटम, तो क्या होगा? कुछ पार्ट ज़्यादा बड़ा होगा, कुछ बहुत ज़्यादा छोटा होगा, है ना. कोई सिमेट्री नहीं है माउंटेन्स की. सो दैट्स वाई इट सेज द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयज आर असिमेट्रिकल इन नेचर. सो नेक्स्ट इज
core is made up of granite and it is perennially snowbound. Now जो ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, अब इनका जो ये कोर है, सेंटर, जैसे हमारा अर्थ का होता है ना, सेम एज दैट, जो हमारे माउंटेन का सेंटर है, कोर, वो किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. फाइन. एंड वाइट इज सेज दैट इट इज perennial snowbound because most of the time the peaks are covered with the snow. तो इसलिए इसे क्या बोला गया है? Snowbound perennial mountain. Fine. So number of glacier descend from this range. Now also कई नंबर्स की जो ग्लेशियर्स हैं वो इस रेंज में से निकलते हैं. सो द होमवर्क ऑफ टुडे इज योर दैट यू हैव टू राइट डाउन. तुम्हारे को एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी ग्लेशियर इस रेंज में से आती है, एंड यू हैव टू सेंड मी ऑन माई नंबर. अंडरस्टूड? सो दिस इज द होमवर्क दैट यू हैव टू फाइंड ऑल द ग्लेशियर्स दैट लाइज ऑन दिस रेंज. So the Himadri range consists all prominent Himalayan peaks. So this I gave you the homework for the glacier, and now I am explaining you the prominent Himalayan peaks that lies on this range. So these are the peaks that lies on the Himadri range: Mount Everest, Kanchenjunga, Malku, Dhalugan, Nangan Parbat, Anandpuri, Nanda Devi, Kamet, Namcha, Barwa, Gurala, Mandhatta. So these all the peaks lies in the Himadri range. So I hope you have understood what is Himadri range. So in short, if I say that Himadri range is the greatest range, and it is the very first range made up of when Eurasian and Indo-Austrian plates collide with each other. So very first range was made, that is Himadri range, and also it consists the loftiest peaks mountain in it, which has the average height of 6,000 meter. Fine. So the next is Himachal or Lesser Himalaya, or it is also known as Middle Himalayas. Pir Panjal range forms the longest and most important range. Dhauladhar and Mahabharata are other prominent ranges. So like as we studied in the Himadri range that we have some prominent Himalayas peak in that. So same as that in middle Himalayas also we have some prominent ranges. But इसमें थोड़ा difference है. वो क्या difference है? That I'll explain you with the help of book. So you can see this picture in your book. Let me zoom it. तो with the help of this picture I'll explain you. ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में. इसी पिक्चर से आपके काफ़ी जो डाउट है, सारे जो भी डाउट्स होंगे आपके, वो सब क्लियर हो जाएंगे with the help of this book. So the very first inner range you can see है ना, हिमाद्री रेंज, जो देख रहे होंगे आपकी कहीं ब्रेकिंग आउट नहीं है इसमें, ब्रेकिंग. सो ये सारी एक लाइन से ये जो ये रेंज है, एक सेकेंड, हाँ. सो यू कैन सी कि जो ये हिमाद्री रेंज जो एक लाइन से पूरी तीनों पैरेलल है, बट जो ये रेंज है एकदम सीधी है, इसमें कहीं आउटब्रेक नहीं है. बट इन द मिडिल हिमालय रेंज यू कैन सी दैट यहाँ पे कई सारे ब्रेकिंग आउट्स हैं ना. तो ये जो ब्रेकिंग आउट्स हैं वो क्यों है? बिकॉज इट डिनोट द प्रोमिनेंट रेंजेस इन इट. जो ये ब्रेकिंग पॉइंट्स है, जो पीर पंजल है, धौलाधर है, महाभारत और बाकी जो प्रोमिनेंट्स है, वो सारी इस रेंज में लाई करती हैं. दैट्स वाई दे हैड अ दिस ब्रेकेज पॉइंट. फाइन. बट इन हिमाद्री व्हाट हैपेंस, वो सारी रेंजेस थी, वो सारी एक साथ थी. फाइन. सो दैट्स वाई इट वॉज इन अ स्ट्रेट क्यू. वो सारी एक स्ट्रेट क्यू में थी, क्योंकि उनका सबका साइज, स्ट्रक्चर वेट सब सेम था, तो वहाँ पे कोई आउटब्रेक नहीं था. बट इन द मिडिल रेंज प्रोमिनेंट है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? इनके साइज और विड्थ इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो दैट्स वाई दे हैड अ आउटब्रेक इन इट. Famous valley of Kashmir, the Kangra and Kullu are found in this range. Now in this range, in Himalaya range, you can see that we found famous valley. अब valley किसे कहते हैं? See, these are the two mountains, है ना, और उसके बीच में जो U structure होता है, the U structure is known as valley. जब दो माउंटेन आपस में मिलके एक यू स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वैली.
फाइन. सो फेमस वैली कौन कौन सी है? कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली आर फाउंड इन दिस रेंज. सो दीज आर द वेरी फेमस रेंज वैलीज दैट वी फाउंड इन दिस रेंज. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज मिडिल हिमालय रेंज. ओके, सो नेक्स्ट इज दैट शिवालिक्स और आउटर हिमालय. सो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ये शिवालिक क्यों है ना, और इसके आउटर हिमालयाज क्यों बोला जाता है. सो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी आपको, तो थोड़ा सा होमवर्क भी आई शुड गिव यू सम होमवर्क. सो द होमवर्क ऑफ द डे इज दैट यू हैव टू फाइंड दैट मीनिंग ऑफ शिवालिक, फाइन, एंड दैट you have to send me in my person number. So this is your homework, that why it is known as Shivalik. So now next is outer Himalayas. So as I explained you, inner Himalaya है ना, बहुत आसान सी, मतलब बहुत सिंपल सी बात है. जो सबसे पहले बनी वो थी इनर, और जो सबसे बाद में बनी वो थी आउटर. सो दिस रेंज इज नोन एज आउटर हिमालय रेंज. फाइन. नाउ आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय एज एक्सप्लेन यू, जो सबसे पहले बनी वो इनर है, जो सबसे बाद में बनी वो आउटर मोस्ट रेंज है. These range are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers, form the main Himalaya range located further north. Now this is very important to explain. अब जो ये range है वो कैसे फॉर्म हुई है ना. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे हिमालयाज है ना, ये हिमाद्री है हमारी, और ये हिमाद्री रेंज है, और ये मिडल रेंजेस है, ये थोड़ी कम हाइट में है ना. दिस इज शिवालिक. अब ये बनी कैसे? जो रिवर्स थी है ना, वो जो रिवर्स यहाँ से आ रही थी इनके बीच में माउंटेन से, तो ये अपने साथ क्या लेके आ रही थी? ये सेडिमेंट्स लेके आ रही थी. सेडिमेंट्स मतलब सम रॉक्स जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना. सो दे ब्रिंगिंग रॉक्स एंड सम काइंड ऑफ सेडिमेंट विद देम. सो जब ये रिवर्स में आ रही थी तो वो कंसोलिडेट हो गई, वो कहाँ पे एक जगह पे आके एक जगह आगे इकट्ठी होने लगी वो. और जो वो चीज़, जो सेडिमेंट्स जो इकट्ठे होने लगे, वो दैट फॉर्म्ड इन द मैनर ऑफ शिवालिक रेंज. फाइन. सो इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से यू दैट द that composed of unconsolidated sediments that brought down by the river is known as this शिवालिक. उन्होंने हेल्प करी है शिवालिक रेंज को बनने में. ठीक है. नेक्स्ट इज एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज वेरीज फ्रॉम 900 to 1100 meters and they extend over a width of 10 to 50 kilometers. अब ये आउटर मोस्ट रेंज है, और as we have studied in the Himadri and middle that कि उनकी heights, Himadri was having the highest peak, loftiest peak, middle में आगे थोड़ा कम हो गया. Now this is the शिवालिक outer Himalaya. So जो यहाँ पे peaks का range था वो height कितना हो गया? 900 to 1100 meters. फाइन. और जो width थी वो भी 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर्स होगी, कम हो गई मतलब. ठीक है. Shivalik consists of dunes. Now what is dunes? It is important. So the longitudinal valley lying between lesser Himalayas and the Shivalik is known as dunes. Let me explain you with the help of figure. So अब ये हमारी हिमालयंस हैं. ठीक है. अब क्या कह रहा है कि लॉन्गिट्यूशनल वैलीज हैं. ये हमारी लेसर हिमालय है और ये शिवालिक है ना. लेसर हिमालय कौन सी लेसर हिमालय होती है? मिडिल है ना, मिडिल रेंज. अब ये जो मिडिल है और शिवालिक है उसके बीच की जो वैली है उन्हें हम क्या कहते हैं? डून्स कहते हैं. ठीक है. तो समझ आ गया होगा आपको दैट द लॉन्गिट्यूशनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक इज नोन एज डून्स. फॉर एग्जाम्पल देहरादून, सबको पता है देहरादून, कोटली दून एंड पटली दून. फाइन. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डून्स. These valleys are covered with the thick gravel and aluminium. अब जो ये वैलीज हैं वो किससे कवर्ड है? थिक ग्रेवल्स और एल्यूमिनियम. अब क्यों है? बिकॉज जब रेन वो रिवर्स है ना, जब रिवर्स आती हैं फ्रॉम द हिमाद्री रेंज, जब वो वहाँ से पास थ्रू होके यहाँ इस रेंज तक आती है तो वो अपने साथ ग्रेवल्स और एल्यूमिनियम्स साथ में लेके आती है. सो इन शिवालिक दिस इज द सबसे आउटर मोस्ट हिमालय रेंज है ना. और ये किस विद द हेल्प ऑफ अनकंसोलिडेटेड